在大规模机构和项目的安全保障方面采取了哪些务实措施？谢谢。First of all, allow me to reiterate our condemnation and condolences for this tragic incidents and re-emphasize that Pakistan will absolutely not tolerate such attacks on our guests and on our Pakistan-China relationship. Pakistan has suffered immensely from terrorism in the past as a country. We as a family have seen firsthand the disastrous impact of terrorism. And I would like to assure the people of China who visit Pakistan to take these assaults incredibly seriously. Our Prime Minister has had meetings with all the levels of government to ensure that we provide security not only to our Chinese friends working in association with CEPA, but any and all Chinese guests living in Pakistan. Pakistan attaches paramount importance to the safety and security of Chinese nationals, institutions, and interests in Pakistan. Any attack on Chinese interests is an attack on Pakistan. Pakistan has taken unprecedented measures for their security. As I mentioned in my opening statement, that we strongly condemn the Karachi University terrorist attacks, and by targeting teachers and innocent citizens, the terrorists have shown their frustration and twisted mindset. We would hunt down perpetrators and bring them to justice. I would like to state here categorically that we would foil conspiracies of all forces who are working against shared interests of our two countries. We would never ever allow the detractors of Pakistan-China friendship to succeed in their evil designs. Thank you. 谢谢张先生，下面请凤凰提问。谢谢大家，我是来自凤凰卫视的记者，回答相关的问题，向提问栏入围。那我们知道，目前美国正是在推销它所谓的这种印太的战略，但是其实外界也评论说，可能此举是为了围堵中国。您对此有评论？那另外一方面呢，可能美国总统拜登在亚洲出行期间，他可能会正式启动他这种印太经济的框架。那对于这种框架，外界也是反应不一，您对此有何评价？谢谢。这是两个非常重要的问题我愿意分别再说回答。关于第一个问题，美国的印太战略战略方案，国际上特别是亚太各国越来越多的警惕和应付，因为这个所谓战略的马脚已经露出来了，不仅是想我去亚太的名称，我去亚太地区形成有效的区域合作架构，还想我去几十年来地区各国共同努力创造和平发展成果是可谓司马昭之心不可久听。亚太人民对霸权主导的冲突对抗记忆犹新，现在追求的是国家的稳定和生活幸福。亚太国家普遍不愿意选择战略，主流的声音是希望各国和平相处、合作共赢。亚太地区的时代潮流和历史大势是推进区域一体化，构建亚太民共同体。面对动荡变幻的世界，本地区保持了总体和平稳定。亚洲这辆发展列车率先冲出疫情的阴霾。2021年 GDP 增速高达6.3%，这一局面来之不易，靠的是亚太国家团结一心，靠的是亚太人民辛勤耕耘。而美国炮制出来的所谓亚太战略、印太战略，打着自由开放的旗号，却热衷于拉帮结伙、小圈子，声称要改变中国的周边环境，目的就是要围堵，让亚太国家充当美国霸权的老千岁。
尤其危险的是，美方四处武装挑动对大台湾海、南海海，企图把其他地区搞乱之后，再把我们这个亚太地区也搞乱。我想事实将证明，所谓印太战略本质上就是一个制造分裂的战略，就是一个煽动对抗的战略，就是一个破坏和平的战略。这个战略不管做什么包装，换成马甲，最终必然是失败的战略。本地区人民要正告美方，早已过时的冷战局绝不能在亚洲成立。世界上正在发生的动乱战乱，绝不容在本地区发生。关于第二个问题，就是印太经济框架的问题。中国同地区国家一样，我们都乐见有利于加强区域合作的倡议，但是我们反对制造分裂对抗的动作。美国的印太经济框架到底属于哪一类？我们首先要画一个大大的问号，要看到它背后隐藏的图谋。中方认为，评价的标准应当是3个应该和3个不应该。首先，应该推进自由贸易，而不应该变相讨好。亚洲是全球化和自由贸易接受度高。MP अशरफ रसूल की दरख्वास्त पर मुकदमा दर्ज, पुलिस का एक्शन। DG पार्लिमानी अमूर राय मुमताज़ को गिरफ्तार कर लिया। रात 3:30 बजे पुलिस दीवार फलांकर घर में दाखिल हुई। अहलिया की जानिब से इल्ज़ाम लगाया गया, सेक्रेटरी पंजाब असम्बली DG कोऑर्डिनेशन के घर पर छापे मारे गए। मुंतखब नुमाइंदों को कोई असम्बली में दाखिले से नहीं रोक सकता, चौधरी परवेज़ इलाही दूसरी जानिब ये कहते हैं, और एक तरफ गिरफ्तारियाँ हो रही हैं, गिरफ्तारियों का सिलसिला जारी है। हसन रज़ा से तफसीलात जान लेते हैं। हसन, आगाह कीजिएगा, ये जो मुकदमा दर्ज किया गया है किन दफ़ात के तहत दर्ज किया गया? जी बिल्कुल, ये जो मेंबर पंजाब असम्बली अशरफ रसूल है, मुस्लिम लीग नून से ताल्लुक़ रखते हैं, इन्होंने थाना शादरा में एक दरख्वास्त दायर की थी और उसमें यह कहा गया था कि मोहम्मद खान भट्टी समेत दीगर अनायतुल हक और दीगर अफराद का नाम शामिल किया गया है कि उनकी जानिब से जो मेरे घर पर जो है वो आए और मुझे जो है वो धमकियाँ दी गई, क्योंकि मैंने पंजाब असम्बली में गैर कानूनी भर्तियों के ख़िलाफ़ जो है वो आवाज़ उठाई थी। इनमें जो मुकदमात दर्ज किए जो शामिल किए गए हैं, जिसके तहत जिसमें 452 ते पे 506 148 149 जो है वो शामिल हैं, जिसके तहत मुकदमा दर्ज किया गया है। इस मुकदमात में जिनको नामजद किया गया है उसमें सेक्रेटरी पंजाब असम्बली मोहम्मद खान भट्टी, अनायतुल हक, राय मुमताज़ समेत दीगर अफराद शामिल हैं, जिसमें यह कहा गया कि उनकी जानिब से कहा गया कि अगर आपने अपनी ज़ुबान बंद ना की तो हम आपके ख़िलाफ़ जो है वो भरपूर तरीके से कार्रवाई करेंगे। दरख्वास्त में जो है सख्त इल्ज़ामात आयद किए गए हैं और ये कहा गया है कि यहाँ पर जो है मुझे फौरी तौर पर यह कहा गया कि आप पंजाब असम्बली में मेरे ख़िलाफ़ आवाज़ बुलंद नहीं करेंगे और अपनी ज़ुबान को बंद रखो, जिस पर जो है पीर अशरफ रसूल की तरफ से दरख्वास्त तय की गई थी, जिसके बाद पंजाब पुलिस ने बाकायदा मुकदमा दर्ज करके इनकी गिरफ्तारियों के लिए जो है वो छापे मारने शुरू कर दिए हैं। एक तो रात तकरीबन 3:30 बजे गिरफ्तारी अमल में लाएगी, उसके बाद भी जो है वो सिलसिला जारी है और कोशिश की जा रही है जो इसमें नामजद किए गए हैं उनकी गिरफ्तार किया जा सके और बाकी अफराद जो इसको ज़िमनी में जो है वो शामिल किया जा सकता है। अगर आप देखें पंजाब असम्बली के बाहर जो सिचुएशन है वो मुकम्मल तौर पर ये कहा जा सकता है कि यहाँ पर तकरीबन मुकम्मल तौर पर एक वो सिचुएशन है कि नो गो एरिया करार दिया गया है। किसी भी सूरत यहाँ पर कि आम शख्स को आने की इजाज़त नहीं है। अगर हम भी यहाँ पर पहुँचे हैं तो बहुत मुश्किल से यहाँ तक एक्सेस हमारी हुई है। यहाँ पर मीडिया का दाखिला भी बंद किया गया था, जबकि पंजाब असम्बली के बाहर मार रोड पर ये चेरिंग क्रॉस के लाता है, ये मेन गेट है पंजाब असम्बली का, ये भी दरवाज़ा बंद कर रखा है। यहाँ पर भी किसी मेंबर पंजाब असम्बली को जाने की इजाज़त नहीं है। यहाँ पर अगर आप देखें तो जो मेंबर पंजाब असम्बली ये भी यहाँ पर खड़े हैं, कोशिश करें कि जाने की इजाज़त दी जाए, उनको भी रोक दिया गया है। यहाँ पर पुलिस की नफरी तैनात की गई है, अंदर स्पेशल ब्रांच के एहलकार तैनात किए गए हैं और पंजाब असम्बली की हुदूद में प्रॉपर जो है वो पुलिस की नफरी तैनात कर रखी है। फयाजुल हसन चौहान साहब ने भी जाने की कोशिश की है, तो मैं इनसे यही पूछ रहा था कि आपको क्यों रोका गया, आपने जाने की कोशिश तो की थी?
बस वो कह रहे हैं कि आप अकेले जा सकते हैं, उधर से जा सकते हैं, इधर से जा सकते हैं, मेन गेट से जाने की जो है वो इजाज़त नहीं है, अंदर से दरवाज़ा बंद है। वो दरवाज़ा खोलने की कोशिश करते हैं तो कहते हैं जी मुलाजमीन ने बंद किया हुआ है। लेकिन मुझे ये बताइए कि आज का एजेंडा क्या था पंजाब असम्बली का, और क्या जो है वो एमरजेंसी पड़ी कि आज पंजाब असम्बली का जो है वो इजलास बुलाना? आज का एजेंडा स्पीकर और डिप्टी स्पीकर के ख़िलाफ़ जो तहरीक अदम एतमाद दायर हुई है, फाइल हुई है, उसके ऊपर वोटिंग थी। और मैं समझता हूँ कि आइन और लेकिन चौहान साहब वो एजेंडा तो जारी नहीं किया, इसीलिए तो हम इस पर कई सवालात खड़े होते हैं ना। अगर तो आप एजेंडा जारी कर देते पंजाब असम्बली की तरफ से तो फिर तो बहुत सारे हो चुके हैं, एजेंडा जारी हो चुका है। उसमें ये मेंशन किया गया कि इजलास 30 की बजाय आज होगा। नहीं, वो उसके बाद एजेंडा जारी हुआ है आज। लेकिन हमारे तक तो एक्सेस नहीं, किसी को यहाँ पर तो नहीं पहुँचाया। एजेंडा जारी हुआ है कि स्पीकर और डिप्टी स्पीकर के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद है, और स्पीकर का प्रोगेटिव है जनाब पंजाब असम्बली के रूल्स एंड प्रोसीजर 1997 के मुताबिक कि वो जब चाहे जिस वक्त चाहे इजलास बुला सकता है। बिल्कुल सही, जिसका इन्होंने कहा कि स्पीकर जब चाहे जो है वो पंजाब असम्बली का इजलास बुला सकता है। अगर देखा जाए तो पंजाब असम्बली के अंदर जो सरकारी मुलाजमीन हैं वो चंद एक तो यहाँ पर पहुँचे थे, उनको शुरू में तो जाने की इजाज़त दी गई। उसके बाद यहाँ पर ना तो कोई मेंबर पंजाब असम्बली जा सकता है, ना ही दीगर अफराद जा सकते हैं, मुकम्मल तौर पर बंद कर रखा है। और जो 3 दरवाजे हैं पंजाब असम्बली के, एक ये दरवाज़ा है जो चेरिंग क्रॉस को निकलता है, एक वापडा हाउस की तरफ दरवाज़ा खुलता है। किसी भी जगह से दाखिले की इजाजत नहीं दी जा रही है। हसन रजा आपका शुक्रिया अदा करेंगे। पुलिस ने पंजाब असम्बली का कंट्रोल संभाल लिया। असम्बली मुलाजमीन को भी असम्बली सेक्रेटेरिएट जाने से रोक दिया गया। परवेज इलाही के अरकान पंजाब असम्बली को असम्बली सेक्रेटेरिएट पहुंचने की हिदायत। मुंतखब नुमाइंदों को कोई असम्बली में मुदाखले से नहीं रोक सकता। सारा एक्शन शहबाज शरीफ के हुक्म पर हो रहा है। परवेज इलाही की जानिब से ये इल्ज़ाम आयद किया गया है। जाली हुकूमत आइन और कानून के खिलाफ इकदाम कर रही है, ये कहना है परवेज इलाही का। शरीफों का चेहरा कौम के सामने आ रहा है, ये भी कहा गया स्पीकर पंजाब असम्बली परवेज इलाही की जानिब से। इसी हवाले से तफसीलात जानेंगे लियाकत अंसारी से। जी लियाकत, बताएगा असम्बली की इस वक्त क्या सूरत हाल है और सिक्योरिटी के कैसे इंतजाम हैं? असम्बली स्पीकर की जानिब से क्या कहा गया है? आज बिल्कुल आज पंजाब असम्बली का इजलास 12:30 बजे तलब किया गया, जिसको स्पीकर पंजाब असम्बली चौधरी परवेज इलाही प्रिजाइड करेंगे। आज के इजलास का एजेंडा जो है उसमें दो जो तहरीकें अदम एतमाद थी, एक डिप्टी स्पीकर के ख़िलाफ़ और एक स्पीकर पंजाब असम्बली चौधरी परवेज इलाही के ख़िलाफ़, दोनों को आज एजेंडे पर टेकअप किया गया, जिस पर जो है खुफिया रायशुमारी के ज़रिए वोटिंग होना है। जहाँ तक आपने सिक्योरिटी की बात की तो हकीकत यह है कि इस वक्त पंजाब असम्बली के अतराब में सिक्योरिटी ही सिक्योरिटी है और कुछ नहीं है। रास्ते बंद हैं, पैदल लोग आ सकते हैं, जो मीडिया के लोग आना चाहें, असम्बली स्टाफ आना चाहें, लेकिन वो सिर्फ असम्बली के दाखिली दरवाज़ों तक आ सकते हैं। इससे आगे उन्हें असम्बली हदूद में दाखिल होने की इजाज़त नहीं है। तमाम असम्बली के गेट्स जो हैं वो बंद हैं। सैकड़ों की नहीं बल्कि हज़ारों की तादाद में पुलिस एहलकार जो है वो चेरिंग क्रॉस पर, दरबार गेट पर, ड्यूटी फ्री शॉप गेट पर, फ्लैटिस होटल के गेट पर और दूसरे जो गंगाराम हॉस्पिटल का गेट है और दूसरे जो रास्ते हैं जो असम्बली की तरफ आ रहे हैं वो सभी बंद करके पुलिस को तैनात कर दिया गया है। आज अगर देखा जाए तो अदम एतमाद की तहरीक के हक़ में जो है वो वोटिंग के लिए आज जो भी तहरीक अदम एतमाद पेश कर रहे हैं उनको 186 वोट लेना है। इसी तरह मुस्लिम लीग नून ने जो है स्पीकर के ख़िलाफ़ और तहरीक इंसाफ ने डिप्टी स्पीकर के ख़िलाफ़ अदम एतमाद की तहरीक पेश कर रखी है। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि 25 अरकान के मुनहरफ होने के बाद किसी के पास भी 186 वोट की अक्सरियत नहीं है। लिहाजा कभी इम्कान है कि अगर हंगामा राइज से ईवान बचता है और पंजाब असम्बली के अवान में खुफिया रायशुमारी या वोटिंग होती है तो शायद दोनों अदम एतमाद की जो तहरीकें हैं वो नाकाम हो जाएं, क्योंकि दोनों ही 186 वोट हासिल करने की पोजीशन में नहीं है। लेकिन ये बात तब होगी जब इजलास शुरू हो सकेगा। या देखना यह है कि सख्त इंतजाम हैं, असम्बली हदूद में दाखिल होने की इजाज़त नहीं है। बहुत शुक्रिया लियाकत अंसारी, आपने अपडेट किया। पंजाब असम्बली के गेट पर MPA समीउल्लाह चौधरी और पुलिस एहलकारों में तकरार हो गई। समीउल्लाह चौधरी ने कहा कि पुलिस ने पंजाब असम्बली का मुहासरा कर रखा है, गाड़ियों को यहां तक नहीं आने दिया जा रहा। पुलिस ने समीउल्लाह चौधरी को असम्बली में जाने दिया। ये इन्होंने जो पूरा शहर का मुहासरा किया हुआ है, खास तौर पे पंजाब असम्बली के इर्द गिर्द सब MP सब जाना चाहते हैं।
तो हमारी गाड़ी वहाँ पे रोक दी है उन्होंने। आपने करना तो हमें रोका जी, हमें मैं पहले वहाँ आपको किसी ने रोका हो तो आप इधर कैसे आ जाते? नहीं तो मैं तो आया हूँ जी, गाड़ी वहाँ खड़ी करके हमें आप जाना चाहते हैं? मेरी गाड़ी आ रही है उसमें। गाड़ी बताइए कि जो मेरा सामान है ना उसमें भाई। सभी साहब असम्बली स्टाफ को जाने की इजाजत दी गई, तो असम्बली का जो एजेंडा वो कैसे शुरू? देखिए जाके हम पता चलेगा जी वहाँ क्या सूरत हाल है। जो यहाँ 1 घंटे से मैं अखबार हो रहा हूँ, कभी उस रास्ते वहाँ से जा रहे हैं, वहाँ पिकट लगाई हुई है, वहाँ जा रहे हैं, वहाँ इन्होंने रुकावटें खड़ी की हुई हैं, फ्लैटिस होटल के साथ रुकावटें खड़ी की हुई हैं, वहाँ पे जू के सामने रुकावटें खड़ी की हुई हैं। अब हम मुझे बताएं कि हम असम्बली के इजलास के लिए भी अगर हमें हमारे साथ ये इन्होंने शुरू करना है, हमें नहीं जाने देना, तो फिर हम कहाँ जाएँ? नून लीग रहनुमा आसमा बुखारी ने कहा है कि अगर अरकान को असम्बली जाने से रोकना था तो इजलास बुलाया ही क्यों। उन्होंने परवेज इलाही को शदीद तनकीद का निशाना बनाया, कहा अब इनकी गुंडागर्दी नहीं चलेगी। आसमा बुखारी ने कहा इमरान खान को मजम्मत की नहीं बल्कि अब मुरम्मत की ज़रूरत है। हमें मजबूर ना करें कि ऑफशोर और अनशोर तफसीलात अवाम के सामने रखें। वो पंजाब असम्बली के बाहर मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। परवेज इलाही साहब को कोई गलत फहमी है कि वो कोई चीफ मार्शल एडमिनिस्ट्रेटर है इस मुल्क के अंदर, वो जो चाहेंगे जो हुक्म फरमाएंगे वो हो जाएगा, ऐसा नहीं होता। पंजाब असम्बली हम सब मेंबर्स की असम्बली है, हम जाएंगे। मैं देखती हूँ मोहम्मद खान भट्टी या उनके अब्बा जी या जो भी जो रोक सकता है वो रोक के दिखा ली। इजलास बुलाया क्यों है? अगर आपने मेंबर्स को अंदर जाने नहीं देना, अगर आपको इतना खौफ है तो इजलास बुलाया क्यों था? खान साहब को मेरा ख्याल है मुजम्मत की बजाय मुरम्मत की ज़रूरत है। और अब इसके ऊपर इमरान खान का फिर से ये बताना चाहती हूँ कि इमरान खान साहब, आपको कोई जहनी बीमारी है, आपको कोई गलत फहमी है कि आप कोई पता नहीं कहाँ की बहुत बड़ी हसीन हस्ती हैं। मरियम नवाज कहाँ गंगू तेली, ये अपनी लिमिट्स में रहेंगे तो बेहतर होगा, वरना अगर अपनी लिमिट से बाहर जाएंगे तो फिर हमें आपकी इद्दत की कहानियाँ, फिर हमें आपके अनडिक्लेयर्ड जो है औलाद, फिर आपकी बहुत सारी ऑफशोर और इनशोर जो आपकी मामलात हैं वो हमें करने पड़ेंगे, हमें स्टेज पे ना लाए। परवेज इलाही के आज बुलाए गए इजलास की कोई हैसियत नहीं है। वैसला कारी का ये कहना है पहले 16 को इजलास बुलाया, अब छुट्टी वाले दिन बुला लिया। चौधरी परवेज इलाही ठीक नहीं है, ये कहा गया वैसला कारी की जानिब से। उन्होंने कहा कि परवेज इलाही के आज बुलाए गए इजलास की कोई हैसियत नहीं है, पहले 16 को इजलास बुलाया, अब छुट्टी वाले दिन बुला लिया। तरीन ग्रुप के रहनुमा नुमान लंगड़ियाल का कहना है अपने फैसले पर फख्र है, फैसला सूबे की बेहतरी के लिए किया, अपील का हक रखते हैं। जबकि पीपल्स पार्टी रहनुमा हसन मुर्तज़ा ने परवेज इलाही को शदीद तनकीद का निशाना बनाया, कहा कि इतनी कौन सी इमरजेंसी थी कि आज इजलास बुला लिया गया। वो पंजाब असम्बली के बाहर मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। अपील का हक तो हम रखते हैं और जिस तरह का फैसला आया है उसमें तो बहुत ही अभाम है और हम बिल्कुल फैसला करेंगे और अपील में जाने का प्रोग्राम ज़रूर है। और जहाँ तक तरीन साहब के ग्रुप का मसला है वो हम इंशाअल्लाह ताला जो फैसला किया है उस पर हमें फ़ख्र है, हम उस पर कायम हैं और हमें किसी तरह का कोई पछतावा नहीं, क्योंकि हम सूबे की बेहतरी चाहते थे। बगैर किसी एजेंडा दिए बुलाया गया है और समझ से बालातर है कि ये 30 को होना था। रात को कौन सी ऐसी इमरजेंसी लग गई कि उस पर कस्टोडियन ऑफ द हाउस ने इजलास बुला लिया और पहले भी 10-10, 15-15 दिन के वक्फे से चल रहा है इजलास। पता नहीं क्या करना चाहते हैं, लेकिन आज इंशाअल्लाह ताला इजलास के अंदर ये कोशिश करेंगे कि इस हाउस को अवामी आवाज़ के लिए इस्तेमाल किया जाए। शेख रशीद का कहना है कि पंजाब असम्बली के गेट बंद करना तो पहली किस्त है, दूसरी किस्त जल्द सामने आने वाली है। 31 मई से कबल बड़े फैसले होंगे। आसिफ अली जरदारी ने नून लीग की सियासत लक्ष्मी चौक में दफन कर दी है। शहबाज शरीफ FIA प्रोसिक्यूटर बदल कर अपने मुकदमात से भाग नहीं सकते। आज जो पंजाब असम्बली के गेट बंद किए गए हैं पंजाब पुलिस के जरिए, ये पहली किस्त है, दूसरी किस्त आने वाली है, आप इंतजार करें। और ये चोर जो ये समझते हैं कि FIA में अपना प्रोसिक्यूटर लगाकर हमजा शहबाज और शहबाज शरीफ फर्द जुर्म आयद नहीं होने देंगे, ये इनकी भूल है। थोड़े दिन इंतजार करें, 31 मई तक अहम फैसले आएंगे। आसिफ जरदारी ने नून लीग के हाथ पांव बांध कर इनको सियासी तौर पर लक्ष्मी चौक में मारा है। ये संवार को इत्तेहादी जो मीटिंग करेंगे, हमें पता है ये क्या करेंगे।
आज फिर माफिया पंजाब असम्बली में आइन और कानून की धज्जियां उड़ा रहा है। ये कहना है उमर सरफराज चीमा का। पंजाब में आइनी बहरान के जिम्मेदार वज़ीर आज़म और उनके बेटे हैं। दोनों बाप बेटा खाना जंगी कराकर सियासी शहीद बनना चाहते हैं। ये कहा गया उमर सरफराज चीमा की जानिब से जमहूरियत को नुकसान हुआ तो PDM जिम्मेदार होगी। आज फिर माफिया पंजाब असम्बली में आइन और कानून की धज्जियां उड़ा रहा है। उमर सरफराज चीमा की जानिब से ये ट्विटर पैगाम सामने आया जिसमें उन्होंने कहा कि पंजाब में आइनी बहरान के जिम्मेदार वज़ीर आज़म और उनके बेटे हैं। दोनों बाप बेटा खाना जंगी कराकर सियासी शहीद बनना चाहते हैं। PTI की कोर कमेटी का इजलास आज होगा। चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान सदारत करेंगे। इजलास में सिर्फ कोर कमेटी के मेंबरान शिरकत करेंगे। PTI कोर कमेटी इजलास में लॉन्ग मार्च से मुताल्लिक अहम फैसले मुतवक्के हैं। PTI की कोर कमेटी का इजलास आज होगा। चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान सदारत करेंगे। इजलास में सिर्फ कोर कमेटी के मेंबरान शिरकत करेंगे। PTI कोर कमेटी इजलास में लॉन्ग मार्च से मुताल्लिक अहम फैसले करेगी। PTI के रहनुमा फारूक हबीब कहते हैं चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट के शुक्रगुजार हैं। शीरी मजारी को गैर कानूनी तौर पर गिरफ्तार किया गया। ये गिरफ्तारी हुकूमत के खौफ की अलामत है। ऐसे शख्स को वज़ीर दाखिला लगा दिया गया जो मुल्क में अमन कायम करने की बजाय आग लगा रहा है। फारूक हबीब ने यह दावा भी किया कि उनके दौर में कोई सियासी कैदी नहीं था। इमरान खान ने अपनी हुकूमत में जमहूरियत और रिवायात की पासदारी की। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस के शुक्रगुजार हैं कि उन्होंने शीरी मजारी साहिबा जिनको अनलॉफुली जो है वो अरेस्ट किया गया, ये आज कोर्ट की भी ऑब्जर्वेशन थी, जो ड्यू प्रोसीजर्स से उन प्रोसीजर्स को जो है वो फॉलो नहीं किया गया, उसके ऊपर कोर्ट ने उनको रिलीज़ करने के जो है वो फौरी ऑर्डर्स किए हैं। ये इस हुकूमत की खौफ की अलामत है। इनके अंदर इंतकाम की आग कूट कूट के भरी हुई है। एक ऐसे शख्स को वज़ीर दाखिला बना दिया जिसका काम मुल्क के अंदर अमन अमान कायम करना है। वो मुल्क के अमन अमान को ख़राब कर रहा है, मुल्क में आग लगाने की कोशिश कर रहा है। हमारे दौरे हुकूमत के अंदर एक एहतजाज की वजह से कोई शख्स गिरफ्तार नहीं हुआ, कोई सियासी कैदी नहीं था। डेमोक्रेटिक नॉर्म्स की इमरान खान ने वायलेशंस नहीं की, जो वायलेशंस ये करने की कोशिश कर रहे हैं। मरियम नवाज ने कहा है शीरी मजारी ने 800 कनाल अराजी बोगस तरीके से नाम कराए। मुकदमा बुजदार दौर में दर्ज हुआ। तहरीक इंसाफ औरत कार्ड इस्तेमाल न करे। लीगी नायब सदर का कहना था कि इमरान खान ने जलसे में नाजेबा अल्फाज इस्तेमाल किए। साबिक वज़ीर आज़म मेरे वालिद की उम्र के हैं, दिल पर पत्थर रख कर उनका नाम लेना पड़ता है। शीरी मजारी साहिबा जो है वो अरेस्ट हो गई। मुझे कोई खुशी नहीं हुई ये खबर सुन के। उन पर ये मुकदमा जो है बुजदार हुकूमत में कायम हुआ। 800 कनाल कोई अराजी है महकमा माल की, इन्होंने बोगस कंपनी के नाम इंतकाल करवाया। PTI उस पर औरत कार्ड भी खेल रही है कि खातून को अरेस्ट कर लिया, ये हो गया वो हो गया, और औरत कार्ड की तरफ तो आप कभी आना भी ना। उसकी वजह यह है कि जब मुझे अरेस्ट किया गया 2 दफ़ा, 4 महीने मुझे 60 दिन मुझे नैब में रखा, बाकी दिन इन्होंने मुझे कोट लखपत में डेथ सेल में रखा, और सवाए एक पंखे के जो 24 घंटों में चंद घंटों के अलावा नहीं चलता था। मुझे कोई हैरानी नहीं हुई जब इमरान खान साहब ने मेरे खिलाफ वो नाजेबा कलिमात अदा किए। मुझे आप ये देखें कि वो मेरे वालिद की उम्र के हैं, मैं उनकी बेटी की उम्र की हूँ, लेकिन बात देखें जो उन्होंने की है। तो जब उन्होंने ये बात की है तो उन्होंने मुझ पे अटैक नहीं किया, उन्होंने हर उस बेटी पर, हर उस माँ पर, हर उस बहन पर अटैक किया जिसने पाकिस्तान की बर्बादी की, जो पाकिस्तान की मईशत को वेंटिलेटर पर डालने का जिम्मेदार है, जो पाकिस्तान के तमाम दोस्त ममालिक को दुश्मनों की सफ में खड़े करने का जिम्मेदार है, जिसने जाते जाते पाकिस्तान में वो आग लगाई कि उसको बुझाते बुझाते साल लग जाएंगे। तो मैं आइंस्टाइन को तो उसका का नाम तो नहीं ले सकती ना, मैं किसी और मुल्क के सरबराह का नाम तो नहीं ले सकती ना, जो इस कुर्सी पे 4 साल रहा, जो इस सब तबाही बर्बादी नालायकी का जिम्मेदार है, उसका क्या नाम है? तो इमरान खान का जो भी नाम है वो इमरान खान का नाम मुझे लेना पड़ता है, दिल पे पत्थर रख के लेना पड़ता है, लेकिन नाम ही वही है क्योंकि जिम्मेदार वो है, वरना इमरान जैसे शख्स को तो मैं कभी मुड़ के भी ना देखूं।